Üşütürsün kuzum, terliklerini giy. Sağ ol. Ata arabaya dikkat et. Değil mi Tosun? Hayırlı işler. Allah bereket versin. Amin. Hadi kalın sağlıcakla. Ne oluyor burada? Abeci dün gece alem yaptırmış. Sözün bu mu Nazif? Döneklik ettin. Kamil! Bir kere soracağım, doğru mu söylüyor? Ben bu herifleri hepiniz için dik duruyorum. Boğazımızdan haram lokma geçmesin. Ekmeğimizi kaybetmeyelim diye. Ama en yakınımdaki sırtımdan vuruyor beni. Eğer bir kere daha olursa... kan kardeşim demem, kapı komşum demem, sürerim seni. Bir kere oldu. Dahası yok. Namussuza kefil olana itimat edilmez. Bir kere olursa hatadır. Affedilir. İkincisi yanlışa girer. Tekrarını da affetmem. Kıyacak mısın yani kendi ciğerine? Kangren olan sağ kolumsa sol elimle keserim. Tamam. O zaman racon devam. Mahallen demirden kale. Ne girerim ne de kapına dayanana yol veririm. Kal sağlıcakla. Eyvallah. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler. Sağ ayak, tamam mı? Unutma. Bana bak bakayım. 5 dakika önce iyiydin, ne oldu şimdi? Kızdım ben sana. Bak bacaksıza, niyeymiş o? Üzdün Kamil amcayı. Korktu senden. Bana bak kerata. Kamil amcan kumar oynatıyor, ona bir şey demiyorsun. Dükkanının bize ne? Ama oynayıp kaybeden kim? Komşun. Parasını kaybedince hangi parayla eve ekmek götürecek? Bu öyle bir illet ki elini veren kolunu kaptırır. Kamil amcan da buna çanak tutuyor. Ama o senin arkadaşın. Atacağım dedim mahalleden. İnsanın kuralı, kaidesi arkadaşa göre değişir. He? Yüreğine yazdığın kuralı uygulayacaksın. Ona başka, buna başka olmaz. Koy takken önüne de düşün. Ben ilk Nur'a farklı mı davranıyorum? He? Benim kanımdan değilsin diyor muyum ona? Sen neysen benim için o da o. Ben ikinizin de babasıyım. Vicdanındaki kefe kimseye hile yapmayacak. Kimseye iltimas geçmeyeceksin. Adaletin kılıcı herkes için keskin olacak. Ekmek, aş, su gecikebilir. Temel taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Ama mahirim, adalet gecikmez. Tez elden verilmelidir. Bir kahve söyleyeyim mi baba? Yürü kerata. Bu sefer orta olsun. Ağzımızın tadı sabah sabah yerine gelsin.
क्या तुम खाना नहीं खाओगे बेटा? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैंने रहान को कुछ रकम भेजी है ताकि वो आपको कॉल कर सके। आप तो उसे जानती हैं। और ये मंगनी के लिए रकम, आपने कहा था कुछ चीजें खरीदनी है। बेटा, क्या तुमने इसीलिए अपनी कार बेच दी? थे मेरे पास कुछ पैसे, उसी से काम चल जाता। नहीं अम्मी, कार पुरानी हो चुकी थी। अच्छा हुआ बिक गई। अच्छा मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं देख रहा हूँ कि तुम भी डाइटिंग के चक्कर में पड़ गई हो। आखिर ऐसे भूखा रहने की जरूरत है क्या तुम्हें? खा तो रही हूँ बाबा। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। अब मैं वो हार खरीद सकती हूँ जो आयतन के लिए पसंद किया था। माहिर ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। बाबा, ये देखें जरा आप। क्या बात है नूर? मुझे लगता है बुलंद कोई गलत काम कर रहा है। वो बहुत परेशान था कि इस महीने दुकान का किराया कहाँ से देगा, और अब उसके कमरे से ये पैसे मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। यार मुझे क्यों गलत समझ रही हो? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो बताओ ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं है? माहिर ने दिए थे मुझे। खुश? अब तो बता दिया ना। तुमने ये बात क्यों छुपाई? माहिर ने मना किया था मुझे किसी को भी बताने से बाबा। सुबह का अखबार माशाल्लाह रात को खत्म हो गया। गर्मा गर्म खबरें लीजिए और पढ़िए। सुबह का अखबार। वालेकुम अस्सलाम। ताजा ताजा गर्मा गर्म खबरें। सुबह का अखबार। और बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? जी भाई, आपसे कुछ बात भी करनी थी। मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, फिर कुछ काम है मुझे। वापसी में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है माहिर भाई, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। माहिर, पहले मुझे तुम पर गुस्सा था मगर अब नहीं है। तुम्हें इस तरह जिम्मेदार देखकर अब मैं बहुत मुतमईन हूँ। खुश रहो। क्या एक नूर को भी पता चल गया? बेचारे बुलंद को परेशान कर दिया होगा उसने। उफ, क्या कातिलाना मुस्कुराहट थी। हजारों लड़कियां उस मुस्कुराहट पे फिदा हो जाए। देर हो जाएगी, मुझे बहुत से काम करने हैं। लड़की तीर ठीक निशाने पर लगा है तुम्हारा। तुम कितनी खुशकिस्मत हो। यार ऐसे तो ना कहो। माहिर अच्छा है पर मैं भी तो अच्छी हूँ दिमित। वो भी खुशकिस्मत है। जानती हूँ माहिर मुझसे कहता है कि तुम सा दूसरा कोई नहीं है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जब वो मेरा हाथ पकड़ता है तो मुझे उसका लम्स अच्छा लगता है बहुत। माना भाई ने जबरदस्ती दिए, मगर तुमने पैसे लिए ही क्यों? तुम्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे उससे। मैंने उसे मना किया था लेकिन वो नहीं माना। पागल है, मंगनी से पहले कार बेच दिए थे। गुड मॉर्निंग यासीन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुलंद। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मनोली आपा। मैं जरा पेमेंट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जरा जल्दी आना, मुझे घर पे कुछ काम है। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, कीमतें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, ये कैसी आवाज थी? बुलंद, चलो यहाँ से।
अच्छा माहिर, मेरे जाते ही आयतन के सैंडल तैयार करने ना बैठ जाना। क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ के लिए ऐसे ही करता था। माहिर भाई जल्दी है, नई मार्केट पर हमला हुआ है। क्या? कैसे? आज ही तुम यहीं ठहरो। यार फैसल पीछे रह गया। जल्दी आ फैसल, जल्दी। कौन लोग हो तुम? हाँ? भाग, जल्दी आ। बस ही सब ठीक तो है ना सुलेमान? जी माहिर भाई। यासीन, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इग्नोर? बहन तुम ठीक हो ना? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्होंने सब कुछ तबाह क्यों कर दिया। मेरी अंगूठी भी ले गए और तुमने जो किराए के पैसे दिए थे वो भी ले गए। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। उदास मत हो। बाबा आपको मालूम है ये सब कुछ किसने किया है? बेटा तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? जी बाबा हो रहा है। फिक्र मत करो बेटा, जल्द ठीक हो जाएगा। बाबा मैं इग्नोर को साथ लेके जा रहा हूँ। चलो घर चलते हैं हम। और उन कमीनों का तो मैं वो हशर करूंगा कि वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकेंगे कभी भी। माहिर, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बहुत गुस्सा है। कुछ भी करने से पहले दालियान से बात करते हैं। पहुंच गए? हाँ, यहाँ लिटा दो बेटा। तुम फिक्र मत करो, कुशन निकाल के इसके सर के नीचे रख दें अम्मी। आराम से आराम से, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बेटा आपको ये क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझसे अलमारी खुली रह गई, उसका दरवाजा इसे लग गया। ये मेरी गलती है बेटा। परेशानी की बात नहीं है नाजिफ, शाम तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं जरा जा रहा हूँ, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज। दालियान साहब बहुत शानदार पार्टी है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आप लोग लुत्फ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम दालियान साहब। बैठिए बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का। वो तकरीबन 10 लोग थे, ठीक कह रहा हूँ ना बुलंद? बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों को देखेंगे तो शनाख्त कर लेंगे। जी बिल्कुल नहीं। उनमें से एक को देखा था मैंने। तो फिर ठीक है, इस वाकये की रिपोर्ट कराने के लिए आपको हमारे साथ थाने तक चलना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होंगी। जी ठीक है, चलिए। क्या इन पे छोड़ना ठीक रहेगा? अच्छा हम चलते हैं, खुदा हाफिज। माहिर ये लो तुम। एंगेजमेंट के बाद ले लूंगा तुमसे, अभी जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू मेरे दोस्त। हमेशा घटिया मशरूब पिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। दूसरी बोतलें खोलो। सुना नहीं तुमने? जाओ फौरन। खुशामदीद मेरे भाई नाजिफ। खैरियत है? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? हम मजबूर होके आए हैं। बैठो तो सही। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा।
ठीक कुछ भी नहीं दालियान। नई मार्केट में तोड़फोड़ हुई, वहां के दुकानदारों को धमकाया गया, उन पर तशद्दुद भी हुआ। कौन कर सकता है? तुमसे बेहतर कौन जानता होगा ये बात दालियान। जाओ यहां से। किस लिए खड़े हो यहां? हराम कहीं के कोई एक भी काम कर नहीं तुम में से। दफा हो जाओ। ये बताएं, क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? बिल्कुल नहीं बेटा। आपकी इजाजत के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सही कहा ना मैंने? आप झूठ ना ही बोलें तो बेहतर है। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए? माहिर, अपनी बात वापस लो। उस वाकये से सब दुखी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा है, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या तुम जानते हो ये सब किसका किया धरा है? बिल्कुल नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो आपके कदमों में ला डालते। किसी भी हालत में उनसे बदला लेना होगा, वो भी सुबह से पहले। वो जो कोई भी है हमें मालूम होना चाहिए। परेशान मत हो, हम पता चला लेंगे। हमें इंतजार रहेगा। नाजिफ, ऐसे हालात में मिलना खुशगवार नहीं है, मगर अब तुम भी ये देखना कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये जो कुछ भी हुआ है पहली और आखिरी बार हुआ है। मैं हूं ना बदला लेने के लिए तुम्हारा। ये जिसने भी किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मुलाकात होगी आपसे। Aradır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramızdırır. Yaramı sarmaya yar kendi Üf, ne oluyorsun be, ödüm kopardın. Mahir enişteyle Nazif amca gelmişler. Songül haber verdi. बाबा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। बेहतर महसूस कर रही हो? तकलीफ है तो बताओ। नहीं बाबा, ठीक हूँ। या अल्लाह, ये मैंने क्या गलती की? मैंने अलमारी का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मेरी बच्ची इस तरह जख्मी ना होती। अच्छा चलो, मैंने तुम लोगों के लिए सूप बनाया है, गर्म गर्म है, जल्दी से पी लो। ठीक है? मैंने कहा था ना खाने पर इंतजार नहीं करना। अच्छा हुआ हमने इंतजार किया, अब साथ खाना खाएंगे। यहाँ आओ मेरे शेर तुम। ओह, बहुत भारी हो गए तुम तो। आपकी वजह से हमने खाना नहीं खाया। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। कहने दो इसे, सही कह रहा है। सारी गड़बड़ तुम्हारी नानी ने की है। चलो शुरू करते हैं। माहिर, जल्दी बाहर आओ, खाना तैयार है। अच्छा अम्मी, आ रहा हूं मैं। कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, जल्दी आओ। बस आ गया अम्मी। मैं देखती हूँ। आओ बेटा, बैठ जाओ। आओ आओ, वो आ चुके हैं। माहिर कैसा है? हाँ वैसे उनका मूड तो अच्छा लग रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे फिक्र नहीं करो, तुम्हें देखकर और अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं मैं। क्या लाई हो ये? हाय मेरी जान, तुम कितनी अच्छी हो। ये मेरा फेवरेट सिंगर है। ये 2 लोगों के लिए, उन्हें बताओ मेरे साथ जा रही हो। उसके बाद जिससे चाहो मिल सकती हो तुम।
नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ बेटा, खाना खा लो। खुश आमदीद। नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ। मुझे माहिर से कुछ जरूरी बात करनी है, अगर बुरा ना लगे। मैं आता हूँ। हाँ, वो बेटा जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मुझे बात कर। जी। उसने भाई को खाना भी नहीं खाने दिया। कोई जरूरी बात होगी, वो बिलावजी उसे क्यों लेके जाएगी? मैंने खाने के दौरान डिस्टर्ब कर दिया ना? कोई बात नहीं। वो नई मार्केट में क्या हुआ था? मुझे पता लगा वहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई। मैं वहाँ इसलिए नहीं आई कि कहीं बुरा ना लगे तुम्हें। कौन थे वो? अभी तक तो पता नहीं चला कौन थे। खैर, मार्केट ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी माहिर। मुझे कुछ पूछना है, गुस्सा मत होना। क्या बात है, बोलो ना। मेरी एक दोस्त है स्कूल के जमाने से, इंची। वो हमारी मंगनी के लिए एक लॉन पसंद कर आई है और उसने बुक करने की बात भी कर ली है उसके मालिक से। असल में वो बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा हर किस नहीं करती। ये सब उसने हमारी खुशी के लिए किया। उससे वो लॉन बहुत कम पैसों में मिल रहा है। बेचारी ने ये सब हमारा सोच के किया। मैंने तो उसे मना भी किया था, लेकिन तुम क्या कहते हो माहिर? अच्छी तरह तो जानती हो तुम सब, हमारा बचपन यहीं गुजरा है, इन्हीं गलियों में खेलते हुए। तो यहीं होगी एंगेजमेंट। अच्छा, अब तुम्हें अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो बस पूछने के लिए आई थी। जैसे तुम्हारी खुशी। कल रिंग लेने जा रहे हैं हम। अपने पत्ते तो जरा गौर से देखो, तुम हार चुके हो। क्यों, कैसी रही? उम्मीद है ये जहन्नुमी सईद इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कुछ अर्सा पहले तक तो ये यहां नहीं था और अब अचानक ही आ गया। खुदा ही जानता है कि इन लोगों में और नई मार्केट के वाकई में क्या ताल्लुक है। जो मालितन को खड़ा किया है उनके पास मैंने, ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अच्छी बात है। इन मेजों तक मेरा नाम पहुंचाओ ताकि जान जाए वो। मैं उनसे नाराज हूं, उन्हें बताओ। मैं उन्हें सुनहरी पुल से नीचे फेंक दूंगा। जाके सबको बता दो कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा उन मुजरिमों को जो इस वाकये में मुलव्विस हैं। हो जाएगा जनाब। तुम तो कह रहे थे बहुत भूख लगी है, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। खाओ ना मेरे शेर। अपना खाना खत्म करो जल्दी से। मैं अब चलती हूँ। आपने कुछ कहना था आंटी? एक मिनट बेटा, पहले मैं आयतन से मिल लूं, वरना मैं ये काम भूल जाऊंगी। सास बहू का प्यार तो देखो। क्या बूढ़े लोग भूल जाते हैं? खाते हुए नहीं बोलते। बहुत शरारती हो गया है। मैं निकाल देती हूँ। चलो भाई, खाना अब और मजेदार हो जाएगा। मेरी बहन जो निकाल के दे रही है। बुलंद भाई, फायर ब्रिक फैक्ट्री इस्तांबुल में कहाँ पे है? वो स्लॉटर हाउस के करीब में ही है। अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, लेकिन इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जी। आओ, ये हार अपने हाथों से पहनाती हूँ। आईने में देखो जरा, बहुत प्यारी लग रही हो। आपा, क्या आप हैं? क्या अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता?
क्या हुआ आपा? क्या माहिर मान गया आपसे? नहीं, ये लो। थैंक यू इकनूर। अब देखते हैं तुम्हारी दुल्हन आने के बाद इस घर को कैसे चलाएगी। तुमसे बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएगी। सच कह रहे हो? तुम शादी नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम इस बात को कई बरसों तक टालते रहे हो। अभी तुम शादी से इनकार कर सकते हो क्योंकि अगर एक बार मंगनी हो गई तो वो खत्म करना मुश्किल हो जाएगी। ये चाय कड़वी क्यों लग रही है मुझे? हो सकता है मेरे अल्फाज कड़वे हों, मेरा कहना तुम्हें बुरा लगा, मगर ये देखकर खामोश नहीं रह सकती मैं। तुमने देखा ना, मैंने बुलंद से शादी कर ली मगर उससे मुझे प्यार नहीं हुआ। आपको जब किसी से प्यार ही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है गुजारनी। और फिर आदी हो जाते हैं आप ऐसी जिंदगी के। फिर उस वक्त आप ये सोचे बगैर नहीं रह सकते कि आखिर ये प्यार है क्या। प्यार करना अच्छी बात है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता इस बारे में, ऐसा सुना है मैंने। आयतन अच्छी लड़की है, इसीलिए तो बाबा ने उसे पसंद किया। उनके घर की जिम्मेदारी बाबा ने अपने ऊपर ली थी, अब मेरी जिम्मेदारी है। अपने साथ ऐसा मत करो ना। बाबा ने बरसों तक हम सबका बोझ उठाया है, वो बोझ तुम उठाओगे अब क्या? चलो अब बस बहुत हो गया। तुम पानी क्यों नहीं लाई? मुझे प्यास लग रही। लाती हूं मैं। फैसल, चाय। कहो। हाँ? तुमने तो डरा ही दिया। प्लेटें लेकर आओ जाकर, खाने को कुछ लाया हूं मैं। खैरियत है, मूड बहुत अच्छा है। तालियान को असले का कारोबार नामंजूर है, इसलिए उसके बॉस ने वार्निंग दी है। तालियान, अगर तुम हमारी मदद करोगे इस कारोबार में तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। जाके सैतन को बता दो मैंने फैसला कर लिया है। मैं वो हथियार हरगिज नहीं बेचूंगा जिनसे लोग एक दूसरे को मारें। वो उसकी कब्र खोदने का सोच रहे हैं। उसकी तदफीन के बाद नया बॉस उसकी जगह ले लेगा। हम लोगों ने तकलीफें साथ सही हैं, तो खुशी में भी साथ रहेंगे। हमें भी तो इस बात का इंतजार है। बस तुमने उसे एक बार मुतमईन कर दिया तो समझो उसका राइट हैंड बन गए। ये इतना आसान नहीं है। तालियान तजर्बेकार है, मैं उसकी तवज्जो हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने दो साथियों की कुर्बानी दूंगा जो कहते हैं कि हमने मुजरिम पकड़ लिए हैं। ये उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे लिए लूट का माल। जब तुम उन्हें पकड़ो तो उनके पास से बरामद होना चाहिए। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। सियासतदान इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। कल नई बनने वाली मार्केट पर हमला हुआ, उसके नतीजे में काफी माली नुकसान भी हुआ है। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। ताजा ताजा गर्मा गर्म।
हसन पकड़ो उसे। मुस्तफा, जमाल, आओ इधर, सबक सिखा दो इसे। किधर तक भाग सकेगा? किसी काम के नहीं तुम लोग। शर्म मानी चाहिए तुम सब लोगों को। अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए। चल बच्चे आगे चल, चल। इसे तो जानते हो ना तुम? हम इसे नहीं जानते, लेकिन ये अच्छा किया तुमने। अच्छा किया या बुरा किया, मैं अपनी तारीफें सुनने नहीं आया। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये किसका आदमी है। माहिर, घबराओ मत। हम जल्द पता चला लेंगे ये किसके लिए काम करता है। जैसे आप इन्हें सुबह होने से पहले ढूंढ रहे थे। जल्दी से बताओ मुझे, तुम किसके लिए काम करते हो? इसे तो मैं संभाल लूंगा। ठहरो, अपना काम करो। इसे तुमने नहीं ढूंढा। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। इससे मैं खुद पूछगछ करूंगा। चल। शाबाश, जल्दी से बताना शुरू करो कि तुम्हें किसने भेजा था।
तकदीर तुम्हारे हक में अच्छी नहीं होगी। मुझे मुंह बंद रखने वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बचा ले, बचा ले। आपकी बेटी फातिमा आई है। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे यहां मत आने दिया करो। मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? आइंदा अगर चोरी से मेरे ऑफिस में तुम घुसे तो मैं तुम्हारी आगे तोड़ दूंगा। बेहुदा, चलो अपनी अपनी जगह, चलो। फैसल, फैसल क्या हुआ? ये लो निकिता, तुम्हारे भाई के घर का पता चुराया मैंने प्रिंसिपल ऑफिस से। देखा, मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढ ही लिया। आज से उस्मान की तरह तुम भी मेरे बिल्कुल सगे भाई हो। इसने अपनी रस्सी तोड़ ली और मेरी गन छीन कर खुद को गोली मार ली। शुक्र है इसने तुम्हें गोली नहीं मारी। समझ गया हो कि यहां से निकलना नामुमकिन है। माहिर, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैं तो खुद अभी अभी पहुंचा हूँ। ड्रेस के लिए गई थी एंगेजमेंट के। बहुत प्यारा है, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, सबको बहुत पसंद आया। मगर मेरे लिए तो तुम्हारी पसंद अहम है। कुछ भी पहन लो, सब जचता है तुम पे। ये क्या बात हुई माहिर, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तुम्हारे लिए ड्रेस देखना जरूरी है। कह दिया ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे। आओ। मैं जा रहा हूं।
ये लो अपने शूज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दालियान साहब ने मुबारकबाद भेजी है। वो खुद तशरीफ लाते, मगर वो अचानक ही बीमार पड़ गए। माहिर, हम उस आदमी से कुछ उगलवा नहीं सके क्योंकि उससे पहले ही उसने अपने आप को गोली मार ली। दालियान साहब का कहना है कि आपका नुकसान हमारा नुकसान है, हम उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम लोगों पर। कुछ और पता चला तो बता देंगे। दालियान अंकल से कहना हमें आज के बाद कोई मदद नहीं चाहिए उनकी। चलें, ठीक है। तुम्हारी इस जुर्रत पर मुझे खुश होना चाहिए या परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और एक नए रिश्ते में बनने वाले हो, नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। एहतियात करो। क्या एहतियात करूं बाबा? हमारे अपने लोगों पर जुल्म होता रहा और मैं देखता रहूं चुपचाप? आप मत घबराएं बाबा, आपने भी तो सारी जिंदगी कभी किसी की मदद कबूल नहीं की, बल्कि दूसरों की मदद की और मुझे भी अपने ही जैसा बनाया। मैं कुर्सियां यहाँ पर भी लगा रहा हूँ। हाँ ठीक रहेगा। नरमीन प्लीज ये उठा के टेबल पे रख दो। अरे देखकर तो चलो, इनसे उलझी तो ये लड़कियां टूट जाएंगी। एक जगह बैठ जाओ आराम से। ये क्या है आयतन? बाबा की है ये घड़ी, उन्हें उनके बाबा ने दी थी और वो इसे अपने दामाद को देना चाहते थे, मगर ये उनकी किस्मत में नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। आयतन मुझे बात इसकी... सुनो, तुमने कई साल से हमारा बहुत ख्याल रखा है, हमें कभी अपने घर वालों से अलग नहीं समझा और अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ रिवायती तरीके से हो। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हें कुछ दिनों के लिए रूपोश हो जाना चाहिए। किस लिए? फैसल बेचारा भी तो रूपोश था, उसके साथ क्या किया? उसने बेचारे फैसल पर बहुत तशद्दुद किया, फिर भी उसने जुबान नहीं खोली, यहां तक कि जान दे दी अपनी। बस करो, मुझे उसकी शहादत के नगमे नहीं सुनने। बस एक बात बता दो, एहसान होगा तुम्हारा कि उसकी मंगनी कहां हो रही है। मुझे उस शख्स की गर्दन नेकदे अपने हाथों से काटनी है। उसके घर के बिल्कुल सामने। कौन है? मैं हूं, कार्सली। सब ठीक तो है भाई? कोई मर गया है। मेरी तरफ से ताजियत। क्या कोई नजदीकी था? हाँ, भेज दो किसी को इल्जाम सर लेने के लिए। भेज दूंगा। कहां? अदालत में, मेरे वकील के पास, और उससे कहना सीधा वहीं जाए।
क्योंकि यह वाकया कुछ देर पहले ही हुआ है। हमारे एक साथी ने अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाना चाहा, बस हमने उसकी मदद कर दी। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। लेकिन जिसे भी भेजो उसके लिए एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, उसकी कब्र भी तैयार कर लेना। भाई मैं एक शख्स को तो जेल जाने के लिए ढूंढ सकता हूं, मगर जो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो उसे कहां से लाऊं? कहीं से भी लाओ उसे, ये तुम्हारा काम है। लेकिन एक बात याद रहे, वो ऐसा मासूम हो कि हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा शख्स होगा जिसे पता नहीं होगा ये सब, वो अदालत पहुंच जाएगा। उस शख्स का नाम माहिर कारा है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जनाब वकील साहब, निकदत बाएतमाद है। वो ऐसे मामलात की नजाकत को समझता है। पूरे इंसाफ से होगा सब कुछ, जैसा तुम चाहते थे। ये चुप क्यों बैठे हो तुम? घबराओ मत, ये कानूनी जंग तुम जीत जाओगे। भरोसा रखना, तुम्हारे कातिल को मैं फांसी पर लटकाऊंगा। माहिर कारा देखना बुरा फंसने वाला है। हमारा बदला पूरा होगा। मेरी आपा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहीं नजर ना लग जाए मेरी। अंदर आ जाऊं मैं? कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। आपने जो हार दिया था वो टूट गया आंटी जी, तो इसी वजह से मैंने ये हार पहन लिया अपनी अम्मी का। कोई बात नहीं, ये भी तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। यादगार चीजों की बहुत अहमियत होती है बेटा। हाँ, माहिर जरा बाहर गया है, जैसे ही वो आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है आंटी जी। क्यों कहा आपने ऐसा आपा? अगर उन्हें हार का पता चल गया तो क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पता चल भी गया उनको तो कोई बहाना बना दूंगी मैं। उनका हार तो बहुत बुरा था। नॉर्टन कहाँ हो तुम? माजरत चाहता हूँ, मुझे मिस्टर नाजिफ से मिलना है। क्या आप उनकी बेटी हैं? नहीं, मैं उनकी होने वाली बहू हूँ। ओह, मतलब के मंगेतर है माहिर की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। बाबा का घर उस तरफ है। इधर आओ मेरे शेर, ये लो। पसंद आए? नकद? मुझे दालियान साहब ने भेजा है, ये माहिर के लिए कुछ तोहफे हैं। दालियान खुद क्यों नहीं आया? दरअसल वो जरा मसरूफ थे। हाँ, मेरी तरफ से तुम उसे शुक्रिया कहना। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ रुक सकता हूँ मैं?
बिल्कुल, बैठो ना। लाए पापा, मुझे दीजिए, मैं रख दूं। लो, हो गया। थैंक यू यार। कॉफी पियोगे? अरे अब क्या कॉफी के लिए हमसे पूछना पड़ेगा तुझे? मंगा लेना। ठीक है। छोटू, इनके लिए 2 मीठी कॉफी लाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या माहिर कह रहा यहीं रहता है? मेरा बेटा है माहिर, कहिए। उसे हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बस हमें कहा गया है उसे ले आओ। कोई तो वजह होगी, आप बताते क्यों नहीं? माफी चाहते हैं। सनी, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। अपने ऑफिसर से आज के लिए माजरत कर लीजिए, क्योंकि आज माहिर की मंगनी है। वैसे भी इस वक्त वो घर पे नहीं है। कल सुबह पहली फुर्सत में मैं उसे लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे चीफ का ऑर्डर है और हमें ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। पूछ सकता हूँ चीफ का नाम क्या है आपके? सुलेमान यलमाज। ठीक है, तो फिर आप लोगों के साथ मैं उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आपके बेटे को बुलाया। माहिर इस वक्त घर पर नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। आप अगर कहें तो मैं साथ चलता हूँ आपके चीफ जानते हैं मुझे। सब ठीक तो है ना अंकल? हाँ, सब ठीक है। तुम लोग संभालो, यहाँ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलो। अपनी नानी से कहना मैं जरा काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। और खाना अकेले मत खाना, मेरे साथ ही खाना। ठीक है। क्या हुआ भाई? माहिर फंस गया? नहीं यार, अभी तो निकल यहां से, चल। अम्मी। हाँ, ये बस तैयार है। बाबा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पुलिस आई थी, उन्हें अपने साथ ले गई है। इंस्पेक्टर कह रहे थे कि परेशानी की कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो। नई मार्केट वाले मसले में गए होंगे, हमने कंप्लेन की थी। मुझे साथ लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि आज तुम्हारी मंगनी जो है। जाओ ऊपर जाकर तैयार हो जाओ, चलो। और जब तक बुलाया ना जाए नीचे मत आना। हम यहीं पर खड़े हैं, आप जाइए। मिस्टर सुलेमान ने बुलवाया था मुझे। वो आप ही का वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तुमने मुलाकात के लिए यही दिन चुना कि जिस दिन मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। तुम नतराजन से इस्तांबुल आ गए और बहुत बड़े आदमी बन गए, फिर भी तंग करने से बाज नहीं आए मुझे। ये तो बताओ किस लिए बुलवाया था? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे सुलेमान? अरे यार, बात क्या? सुलेमान, ये क्या हुआ?
आपको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आपका बयान लेने के लिए जल्द ही हमारे ऑफिसर पहुंच जाएंगे। नाजिफ कारा है मेरे बाबा, कहाँ है? बाबा यहाँ है तुम्हारे। बाबा उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? ये कानून है। माहिर, मना है बात करना। ये सही कह रहा है। तुम बाहर इंतजार करो। तफ्तीश के बाद ये लोग इन्हें कोर्ट ले जाएंगे। घबराओ मत। मैं अपने मौकिल की रहनुमाई के लिए यहीं रुकूंगा। आ जाइए। अपनी गन छुपाना, कमिश्नर आ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। अपना अपना असलहा वापस मेज पे रख दो। ये लीजिए। मोटे की तो जान निकाल दी तुमने। मैं तो ऐसे ही मजाक करता हूँ। आओ बैठो तो सही। आपसे पूछो क्या लेंगे। एक खबर है तुम्हारे लिए। कैसे? तुम्हारा चीफ जो था उसे मार दिया गया है। हाँ? पकड़ने हुआ कैसे? एक और खबर भी है मेरे पास तुम्हारे लिए। नाजिफ कारा को जानते हो? उसी नाजिफ कारा ने तुम्हारे चीफ को कत्ल कर दिया। नकदित, मुझसे घर पर नहीं रहा गया। बता हुआ क्या माहिर के साथ? क्या वो जेल चला गया? इब्राहिम प्लान चेंज हो गया। मतलब क्या है? उसके बजाय उसके बाप को भेज दिया। उसके बाप को? हमें उससे बदला लेना था। माहिर को जेल भिजवाने से फैसल वापस आ जाता। हाँ? मगर ऐसा करने से वो जीते जी मर जाएगा जब उसके बाप को फांसी होगी। उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। हमारा बदला ऐसे पूरा हो जाएगा। बयान मुकम्मल हो चुका है। अब वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। तो अब होगा क्या? दरअसल चीफ साहब ने तुम्हें बुलाया था। किस लिए? ये तो तुम्हारे बाबा भी नहीं जानते। यहां इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा कि हम नहीं जानते कि चीफ साहब ने तुम्हें वहां क्यों बुलाया था। तुम्हारे बाबा वहां चले गए क्योंकि तुम मंगनी के कामों में मसरूफ थे। अगर तुम उस वक्त वहां जाते तो इस वक्त तुम्हारे बाबा मेरे साथ मौजूद होते। काश कैसा ही होता। जब तुम्हारे बाबा कमरे में गए तो चीफ पहले ही मारा जा चुका था। उन्हें पेपर कटर से मारा गया था। उनकी सेक्रेटरी कमरे में आई तो वो मर चुके थे। पुलिस वाले सेक्रेटरी का बयान नहीं ले सके क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। अगर वो उसका बयान ले लेते हैं तो फिर अदालत में मुकदमा चलेगा। छूट तो जाएंगे ना बाबा? हर चीज सेक्रेटरी के बयान पर मुनहसर है। यानी वो झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। बदकिस्मती से वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे, इसलिए उन पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। बाबा ने खून नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। अपनी जेबें खाली करें।
वो लोग आ गए। बाबा कहाँ है? क्या हुआ? क्या उन्हें छोड़ा नहीं भाई? नासिफ, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारा चेहरा उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोग अंदर तो चले, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मुकदमा कल सुबह चलेगा। कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं छोड़ सकते। नासिफ ने कत्ल नहीं किया, उन्हें यकीन है ना बेटा? अम्मी जान, दरअसल जिस वक्त कत्ल हुआ बाबा उस वक्त वहीं थे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा कल हमारे साथ होंगे। भाई तुम लोगों के मुंह अब क्यों उतरे हुए? भरोसा रखो। ठीक कह रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो कल आ जाएंगे। अरे खाना ठंडा हो रहा है, बैठ जाएं। आ जाओ, शाबाश। खैरियत है? दालियान साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे वालिद का पता चला, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत हैरत भी है। समझ नहीं आता आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। क्या हम कोई मदद कर सकते हैं? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। यकीनन गलतफहमी है। सच सबके सामने होगा जल्द। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। सुलेमान लामीस को उसके कमरे में कत्ल कर दिया गया। सुबह का अखबार। माहिर, मुझे बाबा की फिक्र हो रही थी, कैसे हैं वो? ठीक है, घबराओ मत। आयतन, हमारी एंगेजमेंट। तुम उसके लिए परेशान मत हो, शुक्र है बाबा ठीक है। अब चलना चाहिए हमें, केस स्टार्ट होने वाला होगा। तुम मत चलो, अम्मी को भी साथ नहीं ले जा रहा। मैं लेके आता हूं बाबा को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। देर से आने के लिए माफ करना। भाई कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, तो धंधा कैसा चल रहा है आजकल? बस ठीक ही चल रहा है। उस्मान कैसा है? मुझे उससे मिले हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं, मगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं मैं। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हुआ है। तुमने जिस आदमी को मुंतखब किया है वो शू मेकर है, और तुमने बताया था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं। माहिर नाम बताया था तुमने तो फोन पर, लेकिन वो नाजिफ कारा निकला। लेकिन उनकी जात एक है ना? आपकी बात से ऐसा लगता है गलती हो गई। बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। बल्कि मैं तो तुम्हारे काम से खुश हुआ हूं। तुमने तो मुझ पर 2 बार एहसान किया है, मांगो क्या चाहिए?
बस आप अपना हाथ हमारे सर पे रखिए भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। बाबा, दूर रहो। बाबा, अपनी माँ और सबका ख्याल रखना माहिर। माहिर, ये हो क्या रहा है? क्या बाबा को नहीं छोड़ेंगे? उनकी सेक्रेटरी सेरा आसिक ने बयान दे दिया है। उसके मुताबिक तुम्हारे बाबा कातिल हैं। कैसे हो सकता है? कुछ नहीं कह सकता। अंकल, आप नाना को वापस ले आएंगे ना? मैं उनके लिए बादाम का शरबत बनाऊंगी। नहीं नहीं, बाबा को मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है, मैं कॉफी बनाऊंगी। नई मार्केट के वाकये में मुलविस मुजरिम पकड़ लिए। वो 2 लोग हैं बिल्कुल भूखे और मुफलिस। उन्होंने ये सब कुछ पैसों की खातिर किया। तुम्हें यकीन है? जी पूरा यकीन है। ठीक है, तो फिर खुद हम उन्हें सजा देंगे। मैंने उनका हशर पहले ही बुरा कर दिया है। आखिर तू बच्चा किसका है? वेल डन। सेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सेरा तो घर पर नहीं है। आपकी बेटी को गलतफहमी हुई है। मेरे बाबा ने खून नहीं किया है। तो तुम ये सब जाकर पुलिस को बताओ ना। बात सुनिए, मुझे आपकी बेटी से सिर्फ ये पूछना है, जब मेरे बाबा ने कत्ल नहीं किया तो उसने झूठ क्यों बोला? मेरी बेटी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। उस पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखें, बात सुने। आंटी, आंटी प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। आंटी, तुम्हें 2 रोज तक यहाँ लॉकअप में रहना होगा। केस खत्म होने के बाद जेल भेज देंगे। जानता हूं मैं ये सब बहुत अच्छी तरह। खुश आमदीद भाई, हो रहा आपका बिस्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहिर, बाबा को नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या हुआ बेटा? मैंने वादा किया था कि बाबा को घर वापस लाऊंगा, नहीं ला सका।
लेकिन जरूर लेकर आऊंगा। ये सब कुछ किसने किया है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैं उसका बर्बाद कर दूंगा सब। खुशाम तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। वक्त कम है, अगर आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। क्या नई मार्केट में और बाबा की गिरफ्तारी में कोई ताल्लुक है? बताइए। मार्केट का मामला वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे थे। नेकिद इतने मुजरिमों को पकड़ लिया है और वो लोग छोटे मोटे जुर्म करने वाले हैं। अगर तुम मुझसे चीफ वाले केस का पूछते हो तो उसका मुझे कुछ इल्म नहीं। देखो माहिर, नाजिफ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे कुछ बातें पता चली हैं। इस केस की जज एक नौजवान लड़की है और वो एक वजीर की बेटी है। जाहिर है उसे उसके बाप की वजह से जज बनाया गया है। आओ हम मिलकर इस मामले को हल करते हैं। तुम पता चलाओ कि इस साजिश के पीछे कौन है, बाकी मैं देख लूंगा। आप इस मसले से दूर रहिए, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये काफी नहीं कि उसने उसकी मां पर हमला किया है? उसने बताया कि सेरा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। वो दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। बूढ़ी औरत तो दिल की मरीज है। सेरा कह रही थी कि वो अब यहां पर काम नहीं कर सकती। उसने अपने ट्रांसफर की दरख्वास्त भी दी है। इन मासूम लोगों का आखिर कसूर क्या है मिस्टर कमिश्नर? ठीक है जनाब, आप सही कहते हैं। बाप ने चीफ को कत्ल कर दिया है और बेटा लोगों को धमकाता फिर रहा है। घबराएं नहीं, हम लोग बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उसे नाकाबिले फरामोश सबक सिखाना चाहिए। मैं कोई और परेशानी नहीं चाहता हूं। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। एक दावत पर पहुंचना है। आपका बहुत शुक्रिया कमिश्नर। आपको कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा, हम देख लेंगे। आराम से यार, आराम से। इसे हथकड़ी लगानी चाहिए थी। मुझसे और कितने लोग सवाल पूछेंगे? क्यों, कोई तकलीफ है तुम्हें? कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये मत भूलो, एक सरकारी मुलाजिम हो तुम और अदालत को जवाबदेह हो। तुम लोग जाओ। बहुत बड़े बदमाश हो, लोगों को बदमाशी दिखाते फिर रहे हो। हाँ, एक बूढ़ी और बेबस औरत को धमकियां देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कैसे? माहिर है मेरा नाम, अच्छी तरह जान ले। छोड़ो मुझे। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है।
तू भी सुन ले। सुन, मैं बॉस माहिर साहब, अपने बाप का राज समझ रखा है? हाँ? बताता हूं तुझे। मेरा नाम है यासीन। बेटा, यहां पर कानून है। बाप कत्ल करता फिर रहा है और बेटा बदमाशियां करता फिर रहा है। सारी बदमाशी निकाल दूंगा। हाँ? सारी बदमाशी। चलो। आओ जूनियर नाजिर, बाहर आ जाओ। आओ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे मेरे बाबा से मिलने दीजिए, मेहरबानी होगी। माहिर बेटा, तुम एक हफ्ते से यहाँ पर आ रहे हो। समझो, हम तुम्हें मिलने से नहीं रोक रहे। तुम हमें चाय और मूंगफलियां जो लाकर देते हो, उन सबके लिए बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। बहुत दूर से आया हूँ मैं, मिलने क्यों नहीं दे रहे आप मुझे उनसे? ये लीजिए, आपके लिए लाया हूँ। बाबा, माहिर,
अंकल अंकल वो रहे नाना। मेरा शेर। माहिर, तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे हैं? कुछ नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शेर, मुझे गिराना चाहते हो तुम क्या? चलो शाबाश। अब जरा मुझे बताओ, पढ़ भी रहे हो या नहीं? 4 का टेबल याद कर लिया क्या तुमने? आप यहाँ पर क्यों रहते हैं नाना? पुलिस वाले आप पर गुस्सा होते हैं ना? पुलिस वाले बहुत बुरे होते हैं क्या? नानी अम्मा आपके लिए हर वक्त रोती रहती हैं बहुत। क्या वाकई? अच्छा। बात सुनो, तुम हो ना उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए। जब तक वापस नहीं आता मैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। फिल्मों में मैंने देखी है ऐसी जगह। फिल्मों वाली जगह असली थोड़ी होती है मेरे शेर बच्चे। मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। इस जगह पर बहुत सुकून है। घर पर नानी कितना शोर करती है ना, देखा है ना तुमने। समझो मैं यहाँ पर छुट्टियां गुजार रहा हूँ। अपनी मर्जी से जब चाहता हूँ सुकून से सो जाता हूँ। हाँ, बहुत आरामदेह बिस्तर है और अपनी मर्जी से सोकर उठता हूँ, और यहाँ मुझे कोई तंग भी नहीं करता। और हाँ, एक बात और, रेडियो है मेरे पास, पूछ लो, तुम्हारे अंकल ने देखा है। क्यों, है ना माहिर? बहुत अच्छा है। बुरे लोग कहाँ हैं नाना? यहाँ पर बेटा कोई बुरा नहीं है, सब लोग मेरे दोस्त हैं। रोज हम लोग खूब लूडो खेलते हैं, खूब गपशप करते हैं। हम सब यहाँ सुकून से रहते हैं। फिर मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं भी सुकून से रहना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, समझ गए? थोड़ा इंतजार करो तुम। मगर लोग तो ये कहते हैं कि आप कभी नहीं आएंगे। मैं हर शाम खिड़की के पास बैठकर आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन आप नहीं आते। मैं जरूर वापस आऊंगा, मत सुना कर उनकी बातें, वो गलत कहते हैं। मैं आऊंगा। आई लव यू। घर वालों का बताओ माहिर, सब कैसे हैं? सब ठीक है बाबा, सलाम कह रहे थे आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? वो रोती हैं आपको याद करके। उसे कहना परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ही लोग घर के बड़े हो, तुम ही लोगों ने ख्याल रखना है सबका। समझ गए? अब मेरा शेर नवासा नाना की जगह संभालेगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। याद रखना तुम, मैं जब वापस आऊंगा तो 5 का टेबल सुनूंगा तुमसे। बाबा, बाबा क्या आप कोई खास बात कहना चाहते हैं मुझे? बस यही कहना है
कि हमें जाल में फंसाया गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो चीफ पहले ही से मरा हुआ था। आप जल्द बाहर आ जाएंगे बाबा। हम जो नाना के लिए लाए थे ये लोग दे देंगे उन्हें। चलो आओ हम चलते हैं। उदास क्यों हो जूनियर नाजिफ? नाना ठीक है? तुमने देखा नहीं? नाना को मारेंगे तो नहीं, पुलिस वाले बुरे होते हैं, डर लग रहा है मुझे। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो नाना को हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे पता है आप मुझे पागल बना रहे हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ ना, इसलिए पुलिस वाले लोगों को फांसी पे लटका देते हैं। मैंने फिल्म में देखा था। मैं तुमसे वादा करता हूं जूनियर नाजिफ, तुम्हारे नाना को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। सुबह का अखबार, चीफ सुलेमान के कत्ल का फैसला आज अदालत में सुनाया जाने वाला है। सुबह का अखबार, चीफ सुलेमान के कत्ल का फैसला आज अदालत में सुनाया जाने वाला है। सुबह का अखबार। चश्मदीद गवाह सहरा आसिक के पुलिस में दिए गए बयान के मुताबिक चीफ सुलेमान का कत्ल जानबूझकर नाजिफ कारा ने ही किया है। पुलिस ने उसे कत्ल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तुम्हारे खिलाफ उनके पास सबूत हैं और वो उन्हें अदालत ले जा रहे हैं। सुन रहे हो? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? बंद है या एंट्री तुम्हारी? एक्सक्यूज मी। ये फाइल्स मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। तुम ये सब करके कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। अदालत में जवाब देना। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कुछ
कुछ भी कर लो तुम मुझे डरा नहीं सकोगे। मैंने इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। जब तुम अनातोलिया में एक मामूली वकील थे, मैं यहाँ अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा था। मैं सब कुछ जान चुका हूँ तुम्हारे बारे में। जरूरत से ज्यादा ही जान चुके हो। मैं हूं कार्सली। मसला सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी था। उसे पता चल गया था कि तुम्हारा शौहर बेगुनाह है। वो इसे रिहा करवाने वाला था। हसन अगर रिहा हो गया तो मार डालेगा मुझे। क्या होगा मेरे साथ? घबराओ मत, खामोश कर दिया है उसको। अब वो हमारे लिए खतरा नहीं रहा, हम दोनों के लिए ऐसा किया। पुलिस वाले यहां एक आदमी को लेकर आएंगे, उसके अलावा किसी को अंदर मत जाने देना। अदालत आलिया से मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिम नाजिफ कारा को तुर्क पीनल कोड के कानून की दफा 450 के तहत गवाहों और सबूतों की रोशनी में सजाए मौत दी जाए। जनाब नाजिफ कारा, आप अब भी उस बयान पर कायम हैं जो आपने दिया था पुलिस और वकील को? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बेकसूर हूं मैं। अदालत के पूछने पर भी मुल्जिम अपना पिछला बयान दोहरा रहा है। तमाम वाकयात और नाजिफ कारा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि मुल्जिम ने ये कत्ल जानबूझकर किया है और वो इसे कबूल नहीं कर रहा। लिहाजा ये सब कुछ देखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि अगली पेशी 24 दिसंबर को होगी, ताकि तफ्तीश का दायरा-कार बढ़ाकर हकाइक तक रसाई हासिल की जा सके। सजाए मौत दी जाए।
परेशान मत हो, हम सूरत हाल को संभाल लेंगे बहुत अच्छी तरह। वो ये केस 2 पेशियों में ही निपटाना चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर करके जल्द अज जल्द सजा देना चाहते हैं। मुझे इस केस की गहराई में जाकर सबूत इकट्ठा करना होंगे। फरीदा मैडम, मेरे शौहर के कातिल को आपने सिर्फ फांसी की सजा देनी है। आप हिम्मत रखिए। आइए मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलिए। आइए। माहिर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हरदिल, कुछ ना कुछ करना होगा हमें। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा तंग कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं माहिर? सिर्फ ये बताओ मुझे कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं। लेकिन हम करेंगे क्या? किसी तरह मुझे अंदर भिजवा दो। मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा? तुम चाहो तो मुमकिन हो सकता है। मैं कोई भी मुलाजिम बन जाऊंगा और तुम मुझे अंदर भेज देना। इससे फायदा क्या होगा हमें? परेशान मत हो, कुछ करते हैं। मुझे किसी भी हालत में अपने बाबा को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे उन्हें जेल से फरारी क्यों न कराना पड़े। मैं इसीलिए खौफजदा हूँ। तो फिर मेरी बात मानो, कुछ भी करके मुझे उस जज के ऑफिस में नौकरी दिलवा दो प्लीज। वो बहुत अहम जज है, उसके पास काम करूंगा तो बाबा को बेगुनाह साबित करना आसान हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। अगर हम लोग भूखे भी रहें तो कोई बात नहीं, अगर हमें घर के बजाय सड़क पर भी रहना पड़ जाए तो उसमें भी कोई बात नहीं। मगर माहिर बेटा, इंसाफ करने में देर मत करना कभी भी। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। कोई गलती किए बगैर इस केस को जल्द निपटाना है हमें। केस पूरी तरह शफाफ और वाज़ेह है। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पहली बार सजाए मौत दे रही हो। परेशान मत हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बस सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये केस जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। लेकिन मुझे उसके कत्ल करने की वजह समझ नहीं आ रही।
वो पता करनी होगी। बेआजत में उनकी दुकान है, मैं खुद वहां जाकर मालूमात लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। मगर तुम बहुत अच्छे तरीके से इस केस पर काम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारी बातें सुन रहे हैं? आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए।